children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, heat and its transmission. Heat, a form of energy. Any metallic object, when touched in a winter morning, gives cold sensation to our hands. We often rub our hands to save ourselves from cold in winter. When we rub our hands, they become warm. Similarly, we feel very hot when some drops of boiled water fall on our body. In our daily life, most often we use the words like very cold, warm, hot and lukewarm. We use these words depending upon the situation. These words describe the degree of hotness or coldness. देखिए कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को आप जब टच करेंगे ना विंटर मॉर्निंग में तो आपको एक कोल्ड सेंसेशन फील होगा. और सर्दियों में हम क्या करते हैं, विंटर्स में अपने हैंड्स को रब करते हैं. तो जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं वो वार्म हो जाते हैं. इसी तरह से अगर कुछ ड्रॉप्स बॉइल्ड वाटर की हमारे हाथों पे पड़ेगी तो ऑफकोर्स हमें बहुत ही हॉट फील होगा. तो देखिए डेली लाइफ में हम ये सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं एंड आई एम श्योर आप लोग भी यूज़ करते होंगे. तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. We feel hot when we touch a hot substance. This feeling of hotness is because of heat energy. When we touch a metallic body in winter, heat flows from our body to the metallic substance. When we touch a hot substance, heat energy flows from the hot substance to our body. That is why we feel hot. Thus, we can say that heat is a kind of energy. It flows from a higher energy level to a lower energy, just like any other energy. तो देखिए हीट आपकी क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आपकी फ्लो करती है. When heat flows out from our body, we feel cold, and when heat flows into our body, we feel hot or warm. देखिए जब हीट हमारी बॉडी से फ्लो करता है तो हमें ठंडा लगता है. जब हीट हमारी बॉडी में फ्लो करती है तो हमें वार्म या हम हॉट फील करते हैं. So we can say that heat is a kind of energy which causes a sensation of hotness and coldness. We wear different types of clothes which protect us from heat and cold. In winter, we wear woolen clothes which have very large number of pores. These pores are filled with air. अब देखिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं हीट एंड कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे कि विंटर्स में हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, इनमें बड़े लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं और ये जो पोर्स होते हैं ये आपके फिल्ड होते हैं किससे, एयर से. Air is bad conductor of heat. It does not allow heat to flow out from our body. That is why woolen clothes help in maintaining our body temperature. Similarly, in summer, we feel comfortable with cotton clothes because a cotton cloth is porous. These pores help in evaporation. Evaporation provides coolness to our body. Air bad conductor है heat का. ये क्या करता है, हीट को अलाउ नहीं करता है कि हमारी बॉडी से फ्लो करे, राइट. इसीलिए वुलन क्लोथ जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह से समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स पोरस होते हैं और ये जो पोर्स है ये इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं और इवेपोरेशन होता है तो हमारी बॉडी को कूल फील होता है. When petrol, diesel, coal, etc. are burnt, heat is produced. As these are fuels, we can say that fuel energy is converted into heat energy. अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूल हैं. जब इनको जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. तो फ्यूल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है आपकी, हीट एनर्जी में. When we cut a log with a saw, the saw becomes warmer. As far as grinding is concerned, both surfaces become warm after some time. In this case, mechanical energy is converted into heat energy because of friction. जब देखिए लॉग को काटा जाता है सॉ के साथ तो सॉ वार्म हो जाता है और जैसे आपका दोनों जो सर्फेसेस है वार्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. व्हेन अ कैंडल बर्न्स, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. Also, heat can be converted into other forms of energy. For example, in thermopower stations, heat energy is converted into electrical energy. All the above examples show that heat is a form of energy and like other forms of energy, it is also interconvertible. So, देखिए ये सारे ही examples से आपको पता चला है कि जो heat है that is a form of energy जिसको हम एक form से दूसरी form में convert कर सकते हैं. Measurement of heat. The words warm, cold, hot, lukewarm, very cold are relative terms. We can only compare a body with another without quantifying the level of hotness or coldness. So a measure is needed for quantifying the same. Heat is measured in temperature. Temperature tells us how cold or hot an object is. So temperature can be defined as the degree of hotness or coldness of a body. देखिए हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर में और टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है. तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. Temperature scales. There are 3 scales used to measure temperature.
They are as follows: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Celsius. This scale is named after Celsius, who developed it. Temperature is measured in degrees Celsius. The lower fixed point is 0 degrees Celsius and the upper fixed point is 100 degrees Celsius. Remember that lower fixed point होता है 0 degree and upper fixed होता है 100 degrees Celsius. Fahrenheit. Fahrenheit developed this scale. Temperature is measured in degree Fahrenheit. The lower fixed point is 32 degree Fahrenheit and upper fixed point is 212 degree Fahrenheit. तो देखिए Fahrenheit में lower fixed point है 32 degree Fahrenheit and आपका upper fixed है 212 degree Fahrenheit. Kelvin. This scale was developed by Kelvin. Temperature is measured in Kelvin. Lowest point is 273 Kelvin. Relation between Fahrenheit scale and Celsius scale. We know that 0 degree Celsius is equals to 32 degree Fahrenheit and 100 degree Celsius is equals to 200 degree Fahrenheit. So the interval, देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 0 डिग्री सेल्सियस में हमने पढ़ा था कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड आपका फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये दोनों इक्वल होंगे. इसी तरह से अपर फिक्स पॉइंट है वो आपके इक्वल होंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट की. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. 100 इन सेल्सियस, करो 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 ऊपर, मैं एक लाइन पहले ही पढ़ लेती हूँ. 100 in Celsius scale is equal to an interval of 180 in degree Fahrenheit. So the ratio of degree Celsius to Fahrenheit is 100 is to 180 or 5 is to 9. देखिए इसमें आपको क्या दिया गया, इनके बीच का जो है ये आपका 100 डिग्री है एंड दिस इज 180 डिग्री, राइट. तो दोनों के बीच में देखिए किस तरह से आएगा, आपका 100 is to 180 का रेशियो है, देन ये कट के आएगा 5 is to 9. दिस इज द रेशियो. सो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है, ये अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है एंड ये सेल्सियस में. एग्जाम्पल 1 देखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट. आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आपके पास है 40 डिग्री सेल्सियस जिसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला. फ़ारेनहाइट आप निकालेंगे 9/5 एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज टू फार्मूलाज into C. C is what? Degree Celsius plus 32. So देखिए 9/5 into कितना आपके पास टेम्परेचर है 40 प्लस 32. ये आपका कट जाएगा 8 से. 72 प्लस 32. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो 40 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के. एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 95 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. अब देखिए आप इसे खुद करेंगे. आप क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला पे रखेंगे एंड देन आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस की इक्वल है. थर्मोमीटर. It is an instrument that is used for measuring the temperature. There are different types of thermometer available which are used by us. Among them, clinical thermometer and laboratory thermometer are very common. Celsius and Fahrenheit thermometers are used by doctors or medical practitioners. In laboratory, either Celsius or Kelvin thermometer is used depending upon necessity. In order to measure very high temperature, such as in oven, flames, furnaces, etc., bimetallic thermometers are used. देखिए थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. अब आपके पास होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो हैं, थर्मोमीटर्स जो हैं, वो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं. लेबोरेटरी में या तो सेल्सियस होता है या फिर आपका केल्विन थर्मोमीटर होता है. वो डिपेंड करता है कि क्या नेसेसिटी है. और अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना है जैसे कि ओवंस में या फ्लेम्स का या फर्नेसेस का, तो वहाँ पे बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स आपके यूज़ होते हैं. Description of thermometer. Thermometer consists of a very thin glass tube having a very small bore, commonly called a capillary tube. Thermometer में आपकी बहुत ही पतली सी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक छोटा सा बोर होता है जिसको commonly बोलते हैं capillary tube. A very thin glass bulb is present at one end of the tube. This bulb is filled with pure mercury. The other end of the capillary tube is sealed.
This thin glass tube is protected by a thick tube called stem. अच्छा देखिए अब क्या होता है, जो ट्यूब होती है इसके एक एंड पे होती है, जो बल्ब होता है ये फिल्ड होता है प्योर मर्क्यूरी से, एंड जो दूसरा एंड होता है वो आपका कैपिलरी ट्यूब के वो सील्ड होता है, राइट। एंड ये जो थिन ग्लास ट्यूब होती है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, थिक ट्यूब जिसे कहते हैं स्टेम। Capillary tube is sealed after removing air from it. The stem is marked according to the necessity. The most commonly used liquid is mercury. It is because of the following reasons. देखिए कैपिलरी ट्यूब सील्ड होती है जब उसमें से एयर जो होती है सारी रिमूव कर दी जाती है, स्टेम को मार्क किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, और जो इसमें लिक्विड यूज किया जाता है दैट इज मर्क्यूरी। और इसे क्यों यूज करते हैं, इसके भी कुछ रीजंस हैं। It is a good conductor of heat and has uniform expansion and contraction over wide range of temperature. सबसे पहले तो good conductor of heat है and इसका uniform expansion and contraction होता है over wide range of temperature. It is a shiny silvery white liquid which can be seen very easily. It doesn't stick to the wall of the thermometer. एक ये shiny silvery white liquid है जिसको easily आप देख सकते हैं, and दूसरा ये thermometer की wall पे stick नहीं होता है, नहीं चिपकता नहीं है। Activity 2.1. Testing the melting point of ice and boiling point of water. Testing the fixed point of thermometer. Keep a thermometer in a funnel having ice. Note down the temperature after short intervals of time. You will find that the temperature will remain at 0 degrees Celsius until and unless all ice is converted into water. It is also called the freezing point. आपको thermometer रखना है एक funnel जिसमें ice है। अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर को नोट डाउन करना है थोड़े टाइम के बाद, बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो आप देखेंगे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। कब तक, जब तक कि वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर टेस्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, टेक सम वाटर इन अ फ्लास्क फिटेड विद 2 stopper. Fix a thermometer in such a manner that the bulb of the thermometer dips in water. Start heating and observe the thermometer. When water starts boiling, note down the temperature. Take the temperature after short interval of time. अब आपको boiling point check करना है तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है फ्लास्क में जो 2 आपके स्टॉपर के साथ फिक्स हो। फिर आपने एक थर्मोमीटर को फिक्स करना है इस तरह से कि जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो वाटर में डिप हो जाए। फिर उसको हीट करना स्टार्ट करना है, थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही पानी आपका बॉईल होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर नोट करना है, एंड टेम्परेचर आपको लेना शॉर्ट विंटर ऑफ टाइम की। तो देखिए आप क्या फाइंड करेंगे, द टेम्परेचर विल रिमेन एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल एंड अनलेस ऑल वाटर इज कन्वर्टेड इन वेपर। देखो आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा जब तक ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, राइट। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या आपका क्लियर हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय 3 डिफरेंट प्रोसेसेस: conduction, convection, radiation. Hold a pan on a gas flames. You start feeling hot after few seconds. After some time, it will become difficult to hold the pan. How does heat transfer from bottom to the upper part of pan? The heat energy has been transmitted from the bottom to the upper part of pan without the movement of atoms or molecules of the pan. Such type of transmission of heat is called the conduction. It can be defined as the process of transmission of heat in a solid without the movement of molecules from their own position is called conduction. देखिए आपको एक पैन को होल्ड करना है गैस फ्लेम्स में, कुछ सेकंड्स के बाद आपको हॉट होना फील शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पैन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये हीट जो है वो बॉटम से पैन के अपर पार्ट तक कैसे आई, तो देखिए हीट जो है वो ट्रांसफर हुई है बॉटम से अपर पार्ट ऑफ पैन तक विदाउट द मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द पैन। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी किसी भी सॉलिड में विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर ओन पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ट्रांसफर नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। नाउ टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, प्लेस a small piece of potassium permanganate in the water. Heat the beaker by gas flame. अब आपको क्या करना है, बीकर लेना है जो पानी से हाफ फिल्ड होगा, उसमें छोटा सा पीस डालना है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। हीट करना है आपको बीकर को गैस फ्लेम पे, and observe it. When the molecules of water get heated, they move towards the surface of water.
This process of transmission of heat is called convection. It can be defined as the process of transfer of heat in a liquid or gas by the movement of molecules from hotter to the colder part of the liquid or gas is called convection. तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो हीट होंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड द सर्फेस ऑफ वाटर. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन. इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट किसी भी लिक्विड या फिर गैस में बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट, यानी कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे किसी भी लिक्विड या गैस में, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. Let us take another example. When you stand near fire, what do you feel? On a winter afternoon, when you sit in the sunlight, you feel warm. The heat which is generated by the sun is very far from us. It travels in vacuum. This type of transmission of heat is called radiation. It can be defined as the process of transmission of heat that doesn't require a medium is called radiation. अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे कि आप कभी भी फायर के पास खड़े होते हैं तो आपको क्या फील होता है? आपको गर्माहट मिलती है. विंटर आफ्टरनून में जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपको वार्मथ मिलती है ना, यू फील वार्म. तो ये जो हीट है जो जनरेट हो रही है सन से, देखिए सन कितना दूर है हमसे, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है. तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन हो रहा है हीट का, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी मीडियम की, राइट. Thus, the transmission of heat energy takes place by three processes: conduction, convection, and radiation. Now, we will discuss in detail three types of transmission with their application. Conduction and its application. We know that heat energy travels from hot point to a cold point due to conduction. The following activities will help you to understand the mode of transmission of heat by conduction. Activity 2.2. To show the transmission of heat, take a flat iron or a metallic ruler. Fix 3 brass pins with the help of wax. Place the ruler on the table as shown in figure. Hold the ruler in position with the help of a brick. Heat the one end of the ruler with gas burner and observe it. You will find that the pin which is close to the heating end drops as the wax holding it melts first. After some time, the second pin falls and so on. देखिए आपको क्या करना है, एक फ्लैट आयरन या फिर एक मेटालिक रूलर लेना है. 3 ब्रास पिन्स आपने उसमें फिक्स करनी है विद द हेल्प ऑफ वैक्स, राइट. अब आपको रूलर जो है फिक्स करना है टेबल में, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है. देखिए इस तरह से एक फ्लैट आयरन ले लिया है या रूलर आपने ले लिया, उसमें ब्रास पिन्स को स्टिक किया विद द हेल्प ऑफ वैक्स. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू इज कि आपने एक एंड जो है रूलर का उसको हीट करना स्टार्ट करना है, देन उसको ऑब्जर्व करोगे. तो जो पिन जो होगी जो आपकी हीटिंग में होगी, जो पहले होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, फॉल ऑफ होना शुरू हो जाएगी, राइट. और उसके क्योंकि जो वैक्स जो उसको होल्ड करके रखा है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद आपकी दूसरी पिन गिरेगी एंड सो ऑन. मतलब जैसे कि आपने इसको हीट किया, हीट आपका इस तरह से आपका जा रहा है, देन आपका जो पहली पिन है वैक्स मेल्ट हो जाएगा, उसकी होल्डिंग खत्म हो जाएगी, वो पिन गिरेगी, देन सेकेंड, देन थर्ड. सो it is clear that heat travels from the hot end to the cold end, but all the solid substances do not conduct heat. When you heat a plastic scale at one end, heat will not transmit to the other end. The materials which allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat. Other examples are silver, copper, iron, aluminium, and metals. Those materials which do not easily allow heat to pass through them are called bad conductors of heat. Wood, plastic, mud, cork, cotton, wool, asbestos, most of the gases and liquids are bad conductors of heat. अच्छा, तो देखिए यहाँ से क्या ट्रैवल, आप यहाँ से आपका क्या क्लियर हुआ गया कि जो हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएगी. लेकिन क्या सारे ही सॉलिड सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करते हैं? नहीं. अगर आप प्लास्टिक स्केल को रखेंगे इस आयरन स्केल की जगह या मेटालिक स्केल की जगह, तो फिर क्या होगा कि हीट नहीं ट्रांसमिट होगी. तो जो मटीरियल्स हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जाम्पल. एंड जो मटेरियल हीट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते उन्हें हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स. जैसे कि आपके सारे एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक, मड, एटसेट्रा. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इफ यू टेक वन एंड ऑफ अ स्टील स्पून, ग्लास और अ थिक वायर, द अदर एंड सून बिकम्स टू हॉट टू होल्ड. अगर आप एक स्टील स्पून का एक एंड लेंगे, ग्लास या फिर थिक वायर का, तो जो अदर एंड है वो एकदम से हॉट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है. बट इफ यू हीट वन end of a glass rod or dip a plastic spoon into hot water, you can hold the other end without discomfort. This means that all substances do not conduct heat equally well. अच्छा, अगर आप ग्लास रॉड का एक एंड अगर आप हीट करते हो या फिर आप
प्लास्टिक स्पून को डिप करते हो हॉट वाटर में, तो जो दूसरा एंड है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंसेज हैं वो इक्वली हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं. Thus, some materials conduct heat quickly. Substances which conduct heat well are called good conductors or simply conductors. Most metals are conductor. Silver is the best conductor. ज़्यादातर metals आपके converter होते हैं, conductor होते हैं, and silver आपका best conductor होता है. If you hold one end of wooden stick in jar, you can hold the other end till the flames nearby reach your hand. Heat doesn't travel quickly through wood because it is a bad conductor of heat. The substances which do not conduct heat well are called bad conductors. Insulators, paper, glass, asbestos, wood, plastic and rubber are examples of bad conductors. अगर आप वुडन स्टिक पकड़ेंगे एक एंड जार में और उसका दूसरा एंड आप पकड़ रहे हैं, जब तक ये फ्लेम आपके हाथ तक नहीं पहुंचाती, हीट नहीं ट्रैवल करेगी क्विकली वुड में, ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है. तो वो मटेरियल्स या वो सब्सटेंस जो हीट को कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करते, उन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स. Activity 2.3 to prove that water is a bad conductor of heat. अब हमें इस एक्टिविटी में क्या प्रूव करना है कि water, which is a liquid, is a bad conductor of heat. Take a test tube. Fill 2/3 of it with water. Dip a wax-coated coin into the water. Heat the upper portion of test tube as shown in figure. After some time, water at the top will start bubbling. देखिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2/3 उसको वाटर से भर देना है, फिर एक वैक्स कोटेड कॉइन में आपको लेना है और डिप करना है उसको वाटर में. नाउ अब आप अपर पोर्शन जो है टेस्ट ट्यूब का उसको हीट करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया गया है. ओके, अपर पोर्शन इसका आपका हीट हो रहा है. कुछ टाइम के बाद जो है वाटर जो है टॉप में यानी ऊपर वो बबल होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ टेक आउट वाटर. अब आप पानी निकालेंगे. अब आपको क्या करना है, चेक द कॉइन. अब आपको कॉइन को चेक करना है. You will find that wax which is coated on the coin does not melt. It is because water as well as glass are bad conductors of heat. तो आप क्या देखेंगे कि जो wax है जो आपके कॉइन पे कोटेड है वो मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वाटर और ग्लास आपके दोनों ही बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. Activity 2.4 to prove that air is a bad conductor of heat. Take a hard glass tube. Place a small piece of wax. Close its mouth with cork. Place it on iron stand as shown in figure. Heat the test tube near its mouth. Observe it for few minutes. You will find that cork blows off after some time, but wax does not melt. It is because air which is near the mouth receives heat. It exerts pressure on the cork. That is why cork blows off, but wax at the bottom of tube does not melt. It proves that air does not help transmit the heat up to the wax. अच्छा, आपको क्या करना है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लेनी है, स्मॉल पीस ऑफ वैक्स लेना है, उसका माउथ क्लोज करना है कॉर्क के साथ. अब उसको एक आयरन स्टैंड में रखना है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिया है. अब आपने टेस्ट ट्यूब को हीट करना है. कहाँ से आप करना करेंगे, यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर देंगे इसके माउथ से, राइट. कुछ टाइम के बाद देखेंगे जो कॉर्क है वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, बाहर क्यों आ जाएगा, देखिए क्योंकि इसको आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, एयर आपकी गर्म हो गई तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दैट इज वाई ये आपका बाहर निकल आएगा, राइट. लेकिन जब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे क्या रखा था, देखिए यहाँ पे आपका वैक्स था, राइट. लेकिन जब आप वैक्स को चेक करेंगे तो वैक्स बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ. ठीक है, तो इससे आपका क्या शो होता है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. All the metals are good conductors of heat. However, some metals conduct heat quickly and some slowly. For example, copper conducts heat faster than aluminium and iron. तो जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जबकि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हीट को क्विकली कंडक्ट नहीं करते, स्लोली करते हैं. जैसे कि कॉपर है, वो हीट को फास्ट कंडक्ट करता है कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम एंड आयरन. Activity 2.5 to prove that the rate of conduction of heat is different for different metals. अच्छा, different metals में जो rate of conductivity है वो different होती है, right? Take one iron rod and one copper rod of the same length. Fix 4 brass pins on copper and iron rod with the help of wax as shown in figure. Clamp these into rod as shown in the figure. Heat both the rod with a spirit lamp in such a manner that the equal length of both rods are within the flame. After few seconds, you will find that pin number 1 of copper drops. After some time, pin number 2 on the copper rod drops. Pin number 1 and 2 of iron rod drop after the pins of copper rod. The whole pins of copper rod fall earlier than the iron rods. Thus, it is proved that the rate of flow of heat is faster in copper than
इन आयन। अच्छा, आपको क्या करना है, देखिए एक आयरन रॉड लेनी है, कॉपर रॉड लेनी है, और इस तरह से इसमें जो ब्रास के पिन्स है फिक्स करनी है 4, राइट, विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब आपको इस तरह से फ्लेम को रखना है कि दोनों में इक्वल हीट जाए, राइट। देखिए एकदम मिडल में रखा है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे जो हीट है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, आपका राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो कॉपर रॉड में से सबसे पहले पिन नंबर 1 गिरेगी, देन पिन नंबर 2 गिरेगी, और जब पिन नंबर 1 एंड 2 आपकी ड्रॉप हो जाएगी कॉपर आपके रॉड से, उसके बाद आयरन रॉड से गिरना शुरू होगा। तो इस कॉपर रॉड में जो आपकी पिन्स होंगी वो पहले गिरेंगी एंड आयरन रॉड की बाद में गिरेंगी। तो इससे क्या शो होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो कॉपर में फास्टर है देन इन आयरन। Liquids and gases in general are poor conductors of heat. Mercury is an exception. The following activity will show you that water is a poor conductor. अच्छा देखिए, liquids and gases होते हैं वो generally poor conductors होते हैं. Mercury आपका एक exception है. Condition required for conduction of heat. There are two important conditions for the conduction of heat from one object to another object. The two objects must be in connection with each other. The temperature of two objects should be different. देखिए सबसे पहले तो दो ऑब्जेक्ट जो है उनका कनेक्शन होना बहुत जरूरी एक दूसरे के साथ, एंड जो टेम्परेचर है दोनों ऑब्जेक्ट का that should be different. Some common applications of good conductors and bad conductors. Cooking utensils are made up of metals because heat energy is transferred quickly from the flame to the food. Cooling coil of air conditioners and refrigerators are made up of copper. It helps in fast removal of heat. Copper tube is used in automobile radiator because it takes heat from hot water or coolant coming from the engine. अच्छा, कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं आपके मेटल्स के बने होते हैं क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर क्विकली हो जाती है फ्लेम से फूड तक। कूलिंग कॉइल जो होती है एयर कंडीशनर की, जो रेफ्रिजरेटर की है, वो कॉपर के बने होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, फास्ट रिमूवल करते हैं हीट का। इसी तरह से कॉपर ट्यूब यूज़ की जाती है ऑटोमोबाइल रेडिएटर में क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हीट ले लेते हैं आपके हॉट वाटर से या कूलेंट से जो कि आपका इंजन से आ रहा है, right? Teacups are made up of bone china, which is a poor conductor of heat. The handles of kettles, pans, electric iron, oven, etc. are made up of insulator. They do not get heated, so we can handle them easily. आपके जो टी कप्स होते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं वो बोन चाइना के बने होते हैं क्योंकि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। इसी तरह से कैटल के हैंडल्स होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन या पैन्स है, अवन, ये बने होते हैं इंसुलेटर से, ये हीट नहीं होते हैं तो हम इनको हैंडल कर सकते हैं ईजिली। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स. These are filled with air as air is bad conductor of heat. So the woolen clothes do not allow heat from the body to escape. हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो एयर से फिल्ड होते हैं और एयर आपको पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो वुलन क्लोथ्स जो हैं वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। The walls and the doors of refrigerator have two layers with an insulating material in the middle. This material prevents coolness to escape. The same happens in flask and geyser. Bricks, glass and mud, which are bad conductors of heat, are used in building houses, especially in rural areas. They keep house warm in winter and cool in summer. देखिए जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं ना, वॉल्स एंड डोर्स के बीच में 2 लेयर्स होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है मिडल में। जो मटेरियल है ये क्या करते हैं, कूलनेस को स्केप नहीं होने देता है। एंड सेम चीज़ें होती हैं आपकी फ्लास्क एंड गीजर में भी। आपके ब्रिक्स, ग्लास और मड जो कि आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनसे घर बनाए जाते हैं स्पेशली गांव के एरियाज में। तो इससे क्या होता है कि विंटर में तो घर गर्म रहते हैं एंड समर्स में कूल रहते हैं। Slabs of ice are covered with sawdust or jute bags. The sawdust and jute bags contain a large number of pores filled with air. Air acts as an insulator and prevents the ice slabs from melting. जो आइस की स्लैब्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं आपकी सॉ डस्ट या फिर जूट बैग से, है ना। तो जो सॉ डस्ट या जूट बैग्स होते हैं उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं विच आर फिल्ड विद एयर। तो एयर आपकी इंसुलेटर है और इसी तरह से आइस स्लैब को मेल्ट नहीं होने देते। कन्वेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन. Liquids and gases are generally bad conductors of heat. That is why conduction process doesn't occur in these states of matter. In liquids and gases, heat energy is transmitted from one point to another by convection. In this process of transmission, molecules themselves move and carry heat to the other part of liquids and gases. This process is not possible in solids because the molecules in solids are closely packed. The intermolecular forces are very high. That is why convection is not possible in the case of solids. अब देखिए आपके जो लिक्विड्स और गैसेस है वो जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसीलिए कंडक्शन प्रोसेस इस स्टेट में नहीं होता, यानी लिक्विड एंड गैसेस में। तो लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे बाय कन्वेक्शन, राइट। अब ये जो प्रोसेस है आपका, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस सॉलिड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि
आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होता है काफ़ी हाई होता है, इसीलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स के केस में पॉसिबल नहीं होता है। Activity 2.6 to prove convection in gases. Take a rectangular wooden box, fit a plain glass on one side of the box. Cut 2 holes of 1 inch diameter on top of the box as shown in the figure. देखिए आपको जिस तरह से दिखाया गया है ऐसे लेना है, आपको एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स लेना है, इसमें एक प्लेन ग्लास को फिट करना है ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स एंड 2 होल्स 1 इंच डायमीटर के आपको करने हैं ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स. Put a small lighted candle inside the box, cover the top 2 holes with glass chimney. Now hold a smoldering agarbatti near the mouth of chimney A. Okay, you will find that smoke from the agarbatti is drawn into the box through A chimney and comes out through chimney B. It happens because the air around the lighted candle becomes hot and becomes lighter. Lighter air moves up by replacing fresh air sucked from chimney A. The agarbatti smoke is sucked in along with the air. It shows that convection currents are set up in the box. अब आपको एक लाइटेड कैंडल रखनी है बॉक्स के अंदर, कवर करना है 2 होल्स को इन ग्लास चिमनीज के साथ जैसे कि आपको दिखाया गया है, राइट. एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्मॉल्डरिंग अगरबत्ती को लेंगे नियर द माउथ ऑफ चिमनी ए. आप देखेंगे जो स्मोक है अगरबत्ती का इज ड्रॉन इनटू द बॉक्स थ्रू ए चिमनी एंड देन वो आ रहा है आपका किसके थ्रू, चिमनी बी के थ्रू. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एयर है लाइटेड कैंडल के ऊपर आपकी वो हॉट हो रही है एंड जो फ्रेश एयर है उसकी जगह ले रही है जो आपकी इस चिमनी ए से आई है. तो जो अगरबत्ती स्मोक है वो सक्ड हो जाएगा हवा के साथ साथ और इसलिए क्या शो करता है कि कन्वेक्शन करंट जो आपके बॉक्स में सेट हो चुके हैं. Applications of convection current. Ventilators and exhaust fans are usually near the ceiling of a room because air which is breathed out is warmer and lighter than ordinary air. It rises and escapes through the ventilator or exhaust fan while cold and fresh air enters through the windows. Heater, blower and heat convectors heat the room by setting up convection currents. अब आपके जो वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन आपने देखोगे यूजुअली आपके क्या होता है, रूम आपका जो रूम का सीलिंग होता है उसके पास होता है, क्योंकि देखिए जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं वो वार्मर होती है और ऑर्डिनरी एयर से लाइटर होती है, तो इसीलिए वो ऊपर उठती है, वो स्केप हो जाती है एंड देन फ्रेश और कोल्ड एयर एंटर करती है विंडोज़ के थ्रू. और हीटर, ब्लोअर या हीट कन्वेक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये भी कन्वेक्शन करंट को सेटअप करते हैं, right? During daytime, land gets heated more quickly than the sea. This is because the specific heat of water is higher than the sun's and earth's surface. Hot air moves in upper direction and the cold air moves from sea towards the land. This is called sea breeze. दिन में क्या होता है कि लैंड जो है जल्दी से हीटअप हो जाती है सी के कंपैरेटिवली. तो देखिए लैंड गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो एयर है वो आपकी क्या होगी, आपकी गर्म होगी. देन आपकी जो सी के, क्योंकि पानी गर्म नहीं हुआ है, पानी ठंडा है, राइट, तो वहाँ से जो ठंडी एयर है वो लैंड की तरफ चलेगी. तो सी से जो लैंड की तरफ आपकी जो एयर चलेगी दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. During the night, land cools more rapidly than the sea. Hot air above the sea rises up and cold air moves from land towards the sea. This kind of movement of air is called land breeze. अब रात को क्या होता है कि लैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी भी हो जाती है, राइट, कंपैरेटिवली सी के. तो हॉट एयर आप सी के ऊपर होंगे तो वो राइज अप होंगे और उनकी जगह लेगा जो लैंड से चलने वाली ठंडी हवाएं. तो ये जो मोमेंट है आपका है लैंड ब्रीज. The monsoon is also a convection current. It is set up because of temperature differences between land and sea. Monsoon भी आपका convection current है क्योंकि आपका setup होता है जब difference हो जाता है land and sea के temperature के बीच में. Radiation and its application. Sun is very far away from us. Heat energy generated on the sun comes to the surface of earth. Light and heat from sun travels through vast expanse of a space, vacuum. Both conduction and convection need a medium, but in radiation no medium is required. In this process, transfer of heat occurs even in vacuum. देखिए सन की लाइट जो है अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है और सन कितना दूर है वहाँ से, राइट. तो ये जो प्रोसेस होता है आपका रेडिएशन होता है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन जिनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा इस प्रोसेस में यानी रेडिएशन में वो आपका वैक्यूम में भी होता है. Activity 2.7 to prove that heat energy can travel through vacuum. Take a special flask fixed with a cork stopper having 2 holes. Pass the thermometer through one hole and a glass tube from other hole. Remove air from the flask with the help of vacuum pump. आपको एक स्पेशल फ्लास्क लेना है जिसमें आपका कॉक स्टॉपर होगा जिसमें 2 होल्स होंगे. आपने थर्मोमीटर को पास करना है एक होल से एंड ग्लास ट्यूब को करना है आपने दूसरे होल से. अब आप क्या करेंगे, फ्लास्क के अंदर जितनी भी एयर है उसको रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प. नोट डाउन द
Temperature. Now keep this flask in bright sunlight. Observe after some time you will find that the temperature of thermometer slowly rises. In spite of vacuum inside the flask, temperature of thermometer rises in sunlight. It proves that heat energy travels through vacuum. अब आपको क्या करना है? टेम्परेचर को नोट करना है, फिर आपने फ्लास्क को रखना है ब्राइट सनलाइट में, फिर अगैन आप थोड़े टाइम के बाद ना टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर है वो आपका बढ़ गया। इन स्पाइट ऑफ वैक्यूम, फ्लास्क के अंदर वैक्यूम था फिर भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है? दैट हीट एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। Light and heat from the sun reach the earth by the process of radiation. Some of its energy is absorbed by trees and earth's surface and some of it is reflected back to the atmosphere. The absorption and reflection of light and heat energy depend on the following factors: color of the object, nature of its surface, rough or smooth, nature of the materials of the body. The black color is the best absorber of light and heat energy. The rough surface absorbs more light and heat energy than the smooth surface. It can be shown in the activity 2.8. देखिए लाइट एंड जो हीट सन की अर्थ तक पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। अब कुछ जो है लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, वेदर इज इट रफ और स्मूथ, और नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है ऑफ द बॉडी। तो देखिए जो ब्लैक कलर होता है ना आपका, वो बेस्ट ऑब्जॉर्वर होता है लाइट एंड हीट एनर्जी का। एंड आपके जो रफ सरफेस होते हैं वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस के। Radiant heat. All objects radiant give out heat. The hotter a thing is, the more heat it radiates. That is, the heat radiated when object depends on its temperature. This heat is called radiant heat. It travels at a great speed in all directions from the point of radiation and it does not need a material medium. अब देखिए जितने भी objects हैं जिन्हें हम radiant कहते हैं वो heat give out करते हैं। जितना ज़्यादा कोई भी thing hotter होगा वो उतनी ही ज़्यादा heat को radiate करेगा। तो ये जो कोई भी object जो हीट रेडिएट कर रहा है डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। तो इस हीट को कहा जाता है रेडिएंट हीट। ये बहुत ही ग्रेट स्पीड से और सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेडिएशन, और इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल्स दिस वे। अब लाइट जो है आपकी रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म है, वो भी इसी तरह से ट्रैवल करती है। लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. What happens to the radiant energy when it falls on an object? Say a tree, person or the soil. Some of it is absorbed by the object and some is reflected by it. How much of radiant energy falling on an object is reflected and how much is absorbed depends on the color of the object and nature of its surface. Again आपका कितना जो रेडिएंट एनर्जी है वो कितनी आपकी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। You may have noticed that a shiny, smooth surface reflects light better than dull, rough surface. The same is true of radiant heat. तो देखिए जो आपके शाइनी स्मूथ सरफेस होते हैं वो लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं देन डल और रफ सरफेसेस, और इसी तरह से रेडिएंट एनर्जी के में भी, रेडिएंट हीट के में भी ये सेम है। Let us perform a simple activity to see how color determines the amount of radiant heat absorbed by an object. To prove that black surface absorbs more radiant energy than white surface, take two identical cans with lids. Paint one with black and the other with white on the outer surface. Fill same quantity of water in both cans. Insert a thermometer through the hole of each lid. Now note down the temperature of each can of water. Put the can in the sun for an hour or two. After an hour, you will find that the temperature of water in black can is higher than that of the temperature of water in white can. It proves that black objects are better absorber of radiant energy than white objects. आपको दो सेम कैंस लेने हैं जिसमें ढक्कन होगा और उनका जो आउटर सरफेस है लेड का उसको आपने कलर करना है, एक को ब्लैक एक को व्हाइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डालेंगे। आप एक थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे, लेड में खोल करेंगे एंड देन आप नोट डाउन करेंगे टेम्परेचर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 1 या 2 घंटे के लिए उसको सनलाइट पे रखेंगे दोनों कैंस को, फिर आप टेम्परेचर नोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस कैन का कलर, लिड का कलर ब्लैक था उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा व्हाइट कैन के कंपैरेटिवली। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर बेटर ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैन व्हाइट ऑब्जेक्ट्स। Also, the hot black bodies are good radiators of heat, whereas white or polished bodies are poor radiators of radiant heat. Same आपका radiant heat के केस में भी होता है। Applications of radiation.
Dark colored clothes are more comfortable in winter as compared to summer because they absorb most of the radiant heat of sun and keep us warm. Conversely, in summer, it is better to wear light colored clothes because they absorb very little amount of radiant heat. देखिए विंटर्स में हम डार्क कलर्स के कपड़े हमें पहनने चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सन की रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वार्म रखते हैं. एंड इसके उल्टे समर में क्या होता है कि हमें लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना है क्योंकि उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी को वार्म नहीं करना है, राइट. The inner surface of solar cookers are painted with black color because it absorbs larger quantity of radiant energy. An electric room heater has polished metal surface behind the heating elements. It helps to reflect almost all radiant heat from the element. This makes the room heater more effective. सोलर कुकर्स के जो इनर सरफेस होते हैं उनको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि ये ज़्यादा क्वांटिटी जो है रेडिएंट एनर्जी की एब्जॉर्ब कर सके. इलेक्ट्रिक रूम हीटर में एक पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है हीटिंग एलिमेंट के पीछे. ये क्या करता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है जितनी भी आपकी रेडिएंट हीट होती है उस एलिमेंट से, और जिससे जो रूम हीटर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. The base of the cooking utensils is painted black because it absorbs heat quickly and takes less time to cook food. कुकिंग यूटेंसिल के जो आपके बेस होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, क्विकली एब्जॉर्ब कर सकें. द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स इज पेंटेड ब्लैक बिकॉज ब्लैक सरफेस रेडिएट्स हीट क्विकली एंड कीप्स इंजन कूल. ऑटोमोबाइल इंजन्स के जो रेडिएटर होते हैं वो भी इनको भी ब्लैक पेंट कर दिया जाता है क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो हीट को क्विकली रेडिएट करता है एंड इंजन को क्या रखता है, कूल रखता है. थर्मस फ्लास्क. Thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquids hot and cold liquids cold. It is made in such a way as to reduce the loss of heat by conduction, convection and radiation to minimum. Thermal flask आपको पता है, right? ये क्या करता है, एक ऐसा वेसल होता है जो गर्म लिक्विड्स को गर्म ही रखता है एंड कोल्ड लिक्विड्स को कोल्ड ही रखता है. तो ये इस तरह से बनाया गया है कि जिससे कि जो लॉस ऑफ हीट है कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के जो थ्रू होता है उसको रिड्यूस किया जा सके. Thermal flask is a double-walled glass vessel. The space between the two walls has no air in it. It is a vacuum indeed. The inside of the outer wall and outside of the inner wall are brightly polished with silver. The whole system is enclosed in a metal case. It is supported with corks or rubber pieces on all sides. The mouth too is closed with a cork. अब जो थर्मस फ्लास्क है डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है, जो दो वॉल्स के बीच का जो स्पेस है उसमें कोई एयर नहीं है, एक्चुअल में ये वैक्यूम है. तो जो इनसाइड है आउटर वॉल का और जो आउटसाइड है इनर वॉल का वो ब्राइटली पॉलिश्ड होते हैं आपके सिल्वर से. होल सिस्टम जो पूरा का पूरा सिस्टम एक मेटल केस के अंदर इनक्लोज होता है. The vacuum between the walls prevents the flow of heat due to conduction and convection. As for radiation, the brightly polished outer surface of the inner wall is a slow radiator of heat. The little heat that radiates is reflected back by the inner brighter surface of the outer wall. So the hot liquid remains hot for a long time in the flask. अच्छा, अब क्या होता है कि देखिए जो वैक्यूम होता है वॉल्स के बीच का वो क्या करता है, हीट को प्रिवेंट करता है फ्लो होने से जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से होता है. एंड रेडिएशन के लिए जो ब्राइटली पॉलिश्ड आउटर सरफेस होता है इनर वॉल का वो आपका क्या होता है, स्लो रेडिएटर होता है हीट का. तो जो लिटिल हीट जो रेडिएट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो किससे, जो आपका जो इनर ब्राइटर सरफेस होता है आउटर वॉल. इसीलिए हॉट लिक्विड आपके हॉट रहते हैं लंबे समय तक. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Heat is a kind of energy that always flows from higher to lower direction. Always remember that heat energy flows in three ways: conduction, convection and radiation. The substances which conducts heat is called a good conductor, for example metal. The substances which do not conduct heat easily are called bad conductors of heat. Wood, glass, air, etc. are bad conductors. The device that measures the degree of hotness is called thermometer. Black and rough surfaces are good absorbers of heat. White and smooth surfaces are poor absorbers of heat. Temperature is generally measured in Celsius or Fahrenheit scale. Kelvin scale is used for scientific purposes. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.